Welcome to the biology learning class. Here you will get the new concepts and your older concept will be clear. You can ask a question and answers and I will give you some assignments and exams so that you can learn your lectures better. So if you want to learn something new, do subscribe my channel, The Science Mania. Now this is chapter 4, cells and tissues, and the contents which we are going to cover in this lecture is all about the transport and the problem related to transport. So ये सब topics हैं water balance problem, osmosis and guard cells, application of knowledge about semi-permeable membrane, filtration, active transport, sodium potassium pump, endocytosis and exocytosis. So these all related to the transport of material. So the first topic is water balance problem. One thing you should clear in your mind, both animal and plant cells, they have to face the problem of water. Either there is scarcity of water or abundance of water, यानी कि या पानी की कमी है या पानी की फराहमी बहुत ज़्यादा है. So both the conditions, animals and plants, they behave differently in different situations and different solutions. So पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से types of solutions हैं जिसमें सेल की प्लेसमेंट हो सकती है या कौन सी ऐसी सॉल्यूशन की कंडीशन है जिसमें सेल की प्लेसमेंट हो सकती है. अब वो कौन कौन सी हैं. फर्स्ट है जी हाइपरटोनिक. टॉनिक का वर्ड यूज होता है सोल्यूट के लिए या सॉल्ट्स के लिए. सो हाइपरटोनिक मीन्स मोर सॉल्ट और मोर सोल्यूट्स इन द सॉल्यूशन व्हेन देयर इज मोर सोल्यूट. Hypertonic, in which solute are less but water is more. So hypertonic with less availability of solute, and isotonic in which both solute and solvent are almost same, यानी कि salt and water दोनों में same होगा almost. अच्छा, अब इस चीज को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि when animal cell is placed in different solutions, कि आप देखें कि तीन situations हैं एक सेल के पास. सपोज हमारे पास ये रेड ब्लड सेल है, इसके बाद तीन situations हैं. अब ये एक सेल है जिसको हमने आइसोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस किया, इसको हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मीडियम दिया और इस सेल को हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मीडियम दिया. सो हाइपर tonic solution and hypotonic solution and isotonic solution, तीनों solutions में सेल differently behave करते हैं. सेल का outcome, सेल में movement of molecules different होता है. अच्छा जी, अब isotonic का मैंने आपको बताया था a solution that has the same solute concentration as another solution. ठीक है. So there is no net movement. Net movement means कि दोनों की movement entry into the cell and exit from the cell, they both are same. So there is no entry and there is no net movement, यानी कि net movement zero होती है. अब entry है और ये फौरन से पहले across the membrane, this is the membrane, and across the membrane water की movement balance हो जाती है. So water moves in and out of the cell, they are at the same level, यानी कि जिस वक्त वाटर की एंट्री हो रही है वैसे ही वाटर लीव फ्रॉम द सेल. सो इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेल की कंडीशन में या सेल की शेप में कोई चेंज नहीं आया. ठीक है. सो if the concentration of water molecules are same, so the overall concentration on both the sides of the cell membranes remains constant, because in isotonic में दोनों को एक stable condition के लिए बहुत जरूरी है कि water entry भी हो और water exit भी at the same time, so that they can maintain the water condition and cell remain in its own shape. अच्छा, जब हम हाइपरटोनिक में देख रहे हैं, हाइपरटोनिक में आप देख रहे हैं सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली कम है. तो आप देखें कि जैसे ही सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, सो इन द सॉल्यूशन व्हिच इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन,
वाटर सेल से लीव आउट होगा, मूव आउट होगा. सो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल बिकम श्रिंक. देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ सेल. ठीक है. और इसको हम क्रीनेशन भी कहते हैं. इनकी सेल की डीफॉर्मेशन. सेल की आप शेप देख रहे हैं. सेल की जो ओरिजिनल शेप है उससे वो डीफॉर्म हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर. जैसे जिसको हम विल्टिंग भी कहते हैं. जैसा लीव में प्लांट में जब स्केर्सिटी ऑफ वाटर हो, व्हेन देयर इज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो आपने देखा होगा मुरझा जाने को कहते हैं, पत्ते मुरझा गए हैं, विच इज कॉल्ड विल्टिंग. सो इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन there is shrinkage of cell, there is shrinkage of deformation of cells. ठीक है. अच्छा जी, अब हम देखते हैं हाइपोटोनिक में. अब हाइपोटोनिक में हमने सोल्यूट्स की अमाउंट देखी, बहुत कम है. अब जब सोल्यूट्स की अमाउंट कम है, सो वाटर मूव्स इनटू द सेल. ठीक है. अब सोल्यूशन में सॉल्ट कम है, सो वाटर मूव्स इनसाइड सो दैट दे कैन मेंटेन द बैलेंस. और उससे क्या होता है कि सेल बिकम स्वेल. अब सेल में वाटर की एंट्री बहुत ज्यादा है, तो वो completely फिल हो जाता है वाटर से. सो वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव इनटू द सेल, causing the cell to expand, to swell, and eventually lyse का मतलब होता है break down. Sometimes animal, because cell membrane, the cell becomes so bulky, then ultimately there is a lysis of cell. Lyse means breakdown. ठीक है. एनिमल सेल में तो ब्रेकेज हो सकता है, पर प्लांट सेल में सेल डिफरेंटली बिहेव करते हैं. अच्छा जी, अब इस कंडीशन के लिए हम लोग एक देखते हैं, आपको प्रैक्टिकली कुछ नजर आएगा. इफ यू हैव सीन रेजिन्स, आपने देखा मेवा, उसको पानी में भिगो दें, थोड़ी देर बाद आप देखें वो उसके साइज बड़ा हो जाता है. so, कौन सा फिनोमिना है? यस, यू आर राइट, ऑस्मोसिस का. अब हम देखते हैं ऑस्मोसिस है क्या. अब ऑस्मोसिस इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. सो आप देखें वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग में था, that mediums enter the cells of raisins and the raisins become swollen up. अच्छा जी, process in which water moves from higher water concentration to lower water concentration. और एक और condition क्या है? through semi permeable membrane. अच्छा, ये डिफरेंटली सेल कैसे बिहेव करते हैं, इसके लिए भी हम आपको एक फिनोमिना हम देखते हैं कि सेल की जो ट्रांसपोर्टेशन के फिनोमिना है. जैसे हम सपोज अगर रेड ब्लड सेल लेते हैं, रेड ब्लड सेल के लिए हम 3 कंडीशंस हैं, और इन 3 कंडीशंस में सेल कैसे डिफरेंटली बिहेव करता है. अच्छा देखिए, हमने तीनों को कंडीशंस दे दी हैं. तीनों में सॉल्ट सोल्यूशन है, तीनों पैटी डिशेस में सॉल्ट सोल्यूशन है. अब देखिए, फर्स्ट सेल में हमने देखा कि वो श्रिंकेज ऑफ सेल होगी. सेकंड में हमने देखा सेल नॉर्मलाइज रहे. थर्ड में देखा सेल स्वोलन अप हो गए. सो इसकी रीजन क्या थी? द रीजन बिहाइंड कि इसके अंदर तो विल्टिंग ऑफ सेल्स हो गई है, because water is less, salt is more. So when there is less solute concentration, when there is more solute concentration, salt ज्यादा है, water कम है, तो solution कौन सा हुआ? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है. सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, एंड ड्यू टू दिस वाटर मूवमेंट from the higher concentration to the lower concentration, then they become cell deformation takes place. अब अगली सिचुएशन में देखें, जब सॉल्ट वाटर बैलेंस है, so there is no net change in the cell shape, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे जैसे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ा सा फर्क पड़ता है. अब ये सोल्यूशन कौन सा है? यस, यू आर राइट, ये सोल्यूशन है आइसोटोनिक सोल्यूशन. आइसोटोनिक में क्या है? नेट मूवमेंट एंट्री ऑफ वाटर एंड वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, दे बोथ आर सेम. ठीक है. दे हैव both almost equal amount of solutes. So water is same on either side of the semi-permeable membrane. अच्छा जी, एक और सिचुएशन देखें जिसमें सेल स्वोलन अप हो गए हैं. अब इस सेल स्वोलन अप क्यों हुए हैं? बिकॉज सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है, सो वाटर एंटर होगा सेल के अंदर. जैसे ही वाटर एंटर होता है, सेल का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है. सो देयर इज अ net entry of water into the cells. So due to the higher water concentration, the solution is hypotonic, solute less and water is more. ठीक है. Hopefully you can understand this
situation and these all placement of cells in different solutions. So this is actually the osmosis जिसमें molecules की movement होती है through plasma membrane. ठीक है, now let's move on. अब हम देखते हैं प्लांट सेल कैसे डिफरेंटली बिहेव करते हैं. अब प्लांट्स में दो तरह के फिनोमिना हैं दैट प्रिवेल्स इन द प्लांट सेल. वो कौन कौन से फिनोमिना है? एक को हम कहते हैं टर्जिडिटी एंड सेकेंड वन इज प्लाज्मोलिसिस जिसको हम फ्लैसिडिटी भी कहते हैं. ठीक है, एक टर्जिड कंडीशन है और एक प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन है. अब हम कंडीशंस को देखते हैं बारी बारी. टर्जिडिटी क्या है? टर्जिडिटी है कि जब वाटर कंप्लीटली, ये जो सेल है वाटर सेल कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर और इतना सेल में वाटर आ जाता है कि सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बिल्कुल पास चली जाती है. सो जब सेल की शेप देखें, द सेल बिकम फुली फिल्ड विद वाटर और इस सिचुएशन को हम कहते हैं टर्जिड कंडीशन. ठीक है, अब प्लांट सेल इन सोल्यूशन विद हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन. अब यहाँ पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सो वाटर हैज टू मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. सो जब मूवमेंट ऑफ वाटर होगी so there is an entry of water into the cell. So higher water concentration in extracellular solution than intracellular, so the net gain of water takes place. अब सेल के अंदर वाटर की एंट्री होगी जिसका ये फायदा होगा कि सेंट्रल वैक्यूल इंक्रीज इन साइज and plants start to swell. Plant cells do not burst due to cell wall. ये बात याद रखें. यही वजह है कि जब हम plants की watering करते हैं, the plants become swell but the cell do not burst. But in case of animal cell आपने देखा उसमें lysis possible हो सकती है. ठीक है. So when the cell wall is stretched to its maximum, the plant cell cannot take in more water. अब देखिए maximum water इसने absorb कर लिया है और जब इस condition को हम कहते हैं turgid condition. So the plant cells prefer to be in hypotonic solution. यानी कि वो ऐसा plant ऐसा prefer करता है कि इसमें solute कम हो, water ज़्यादा हो, so that there must be entry of water because आपको पता है प्लांट्स में कौन कौन से फिनोमिना है, फोटोसिंथेसिस है, उसकी एक मेन रिक्वायरमेंट है वाटर. सो वाटर शुड बी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ डिफरेंट प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, लाइक रेस्पिरेशन. ठीक है. अच्छा जी, अब हम इसकी फ्लैसिडिटी कंडीशंस को देखते हैं. फ्लैसिडिटी कंडीशन क्या है? इन विच देयर इज अ लेस कॉन्सेंट्रेशन. अब यहाँ पे क्या होगा? when there is an hypertonic solution. hypertonic means कि more solutes available हैं और less water है. जब less water होगा then water has to move from, अब cell में water की concentration ज्यादा है और extra cellular concentration कम है. So water has to move out of the cell. जब water cell से बाहर आएगा तो आप देखें the vacuole loses its turgidity, it loses its shape. जब उसकी shape नहीं होगी तो उसकी आप देखते हैं सेल की deformation आपको नजर आ रही है. Cell become deformed due to the loss of water. ठीक है. So lower water concentration in extracellular solution than intracellular solution that allows the net movement of water out of the cell. Central vacuole decrease in size before the cell membrane start to pull away from the cell. This leaves a visible gap between cell wall and cell membrane. Okay, और इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस. अब ये सेल की जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं दिस इज प्लाज्मोलाइज्ड सेल. सो प्लांट्स विल विल्ट इन द प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन. इस कंडीशन को हम कहते हैं विल्टिंग की कंडीशन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है सेल में वाटर की एंट्री बंद हो जाती है बिकॉज जैसे वाटर एंटर भी हो रहा होता है वैसे ये वाटर की एग्जिट भी हो रहा होता है सेल से. और अगर ये वाटर लॉस ज्यादा हो जाए that ultimately cause the wilting और ultimately cause the yellowing of leaves और जिसको हम कहते हैं plant death हो सकती है. ठीक है.
अच्छा जी, अब नेक्स्ट फिनोमिना हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। बिकॉज यू नो कि हमारी पूरी की पूरी लाइफ किस पे डिपेंडेंट है, वाटर पे। और जब वाटर हमारे पास अवेलेबल किस फॉर्म में होता है, वाटर हमारे पास हर फॉर्म में अवेलेबल है। सो लिविंग सेल्स दे आर सराउंडेड बाय एंड फिल्टर विद द फ्लूइड एंड इज मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ वाटर। सो जब वाटर की मूवमेंट अब हम देखते हैं कि वाटर कैसे डिफ्यूज इन या डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल होता है, इसकी मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैसी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट अब अच्छा जी, फिनोमिना क्या है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हमने पहले इसमें देख लिया था ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस इज द फिनोमिना in which there is a movement of water from higher concentration to lower concentration. Another very important condition is semi permeable membrane. ठीक है, ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें कुछ मटेरियल्स तो अलाउ करता है दिस मेम्ब्रेन टू पास थ्रू, बट अदर डू नॉट। अगर हम दोनों में देखें, दोनों में अगर हम शुगर सोल्यूशन बनाते हैं और एक दरमियान में मेम्ब्रेन रख देते हैं, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन एंड दिस इज डाइल्यूट शुगर सोल्यूशन। ठीक है, सो वाटर कहाँ से कहाँ मूव होगा, फ्रॉम यहाँ डाइल्यूट शुगर सोल्यूशन मीन्स मोर वाटर एंड लेस वाटर। सो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एज आप देख रहे हैं कि इसका लेवल इंक्रीज क्यों हो गया, बिकॉज देर इज अ नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन to lower concentration through semi-permeable membrane, and this is called osmosis. ठीक है, this is very important phenomena in cell transport. Hopefully you can understand well. ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि अब हमारे पास कौन सा फिनोमिना है। अच्छा, अभी हमने ऑस्मोसिस देखा कि देर इज नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और उसकी कंडीशन क्या है, परमिएबल मेम्ब्रेन। सो इन केस ऑफ ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा, अब ये हम स्टोमेटा वो ओपनिंग है जहां से वाटर लीव्स में, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, और ये लोअर एपिडर्मिस में कुछ ऐसी ओपनिंग्स हैं जहां से वाटर की एंट्री हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है। और यहाँ से ये जब ओपन होता है, कब ओपन होता है, जब ये सेल्स बिल्कुल टर्जिड कंडीशंस में हो। अब आपको नजर आ रहा है, इनको हम कहते हैं दीज आर गार्ड सेल्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, गार्ड सेल्स। और ये कि इन्होंने किसको गार्ड किया है, किसको प्रोटेक्ट किया है, इस ओपनिंग को, एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड द स्टोमेटा। और जब ज्यादा होगा, स्टोमा इज द प्लूरल, स्टोमेटा इज द सिंगुलर। ठीक है, अब ये स्टोमेटा अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर टू डिफ्यूज इनटू एंड आउट ऑफ द लीफ बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब आप देखें स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस तरह होती है। ठीक है, इस स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसी होती है, व्हेन दीज गार्ड सेल्स दे बिकम टर्जिड, तो ये स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। जब ये कंडीशन होती है, जब ये इसमें सेल्स फ्लैटेंड हो जाते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्लैसिड कंडीशन। व्हेन द गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड, आप देखें स्टोमेटा क्लोज हो गया है। ठीक है, अब ये मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, ये एपिडर्मिस है, यहाँ से जब वाटर मूव होता है इनटू द सेल, ये बल्ज कर जाते हैं बलून की तरह, ये फुली टर्जिड हो जाते हैं, एंड दैट अलाउज द मूवमेंट ओपनिंग ऑफ स्टोमा। अच्छा जी, आप देखें यहाँ से जब सेल से या गार्ड सेल से वाटर की मूवमेंट आउटसाइड होती है, देन दे बिकम फ्लैसिड। ठीक है, सो ऑस्मोसिस और गार्ड सेल का क्या फंक्शन हुआ, ऑस्मोसिस में ऑस्मोसिस का फिनोमिना क्या है कि ऑस्मोसिस जैसे वाटर अवेलेबल ज्यादा है, सो वाटर एंट्री होगी इनटू द गार्ड सेल्स, जैसे गार्ड सेल्स में एंट्री होगी दे बिकम टर्जिड, व्हेन दे बिकम टर्जिड इनके वैक्यूल्स फुल हो जाएंगे वाटर से, दे अलाउ द एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दे अलाउ द, और जब तक कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं होगी उस वक्त तक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, और ये कंडीशन कब होती है, स्टोमेटा कब होता है, जब उसको पता है उसके पास वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, देन द स्टोमेटा बिकम क्लोज, या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाए, बिकॉज कोई एंट्री ऑफ वाटर नहीं है, कोई एग्जिट ऑफ एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कोई एग्जिट ऑफ ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हमारी डेली लाइफ में है। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं इस डायग्राम में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच अलाउज फ्यू मटेरियल टू पास।
ठीक है, नॉट ऑल द मटेरियल, कुछ पास हो सकते हैं, कुछ पास नहीं हो सकते। दैट इज वाई द नेम गिवन सेमी मीन्स हाफ, permeable means allow, so they allow few material to pass and not all। तीन तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक हम कहते हैं permeable membrane जो हर मटेरियल को अलाउ करती है, एक सेमी permeable membrane जो सिर्फ कुछ मटेरियल्स को अलाउ करती है, और एक को हम कहते हैं नॉन permeable membrane जो किसी मटेरियल को अलाउ नहीं करती। ठीक है, अब इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बहुत सारे पर्पसेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, क्या है वन बाय वन देखते हैं। फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, जिस तरह अगर मिक्सर हो, अगर वाटर के अंदर उसके अंदर सॉल्ट भी है और थोड़ा पार्टिकल्स भी हैं, हम फिल्टर पेपर रखते हैं, ये हम प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। हम फिल्टर पेपर इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो वाटर को तो अलाउ करता है कि पास थ्रू, बट कौन कौन से मटेरियल सैंड हो गया, ये सॉल्टी पार्टिकल्स हो गए, उसको नहीं करता। सो दैट फिल्टर पेपर इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंसेस there is a need of semi permeable membrane। अच्छा, कुछ हमारे पास artificial synthesized membranes भी होती हैं। अब उनके लिए क्या होता है, they are used to separate bacteria from viruses। ये इतने sensitive membranes हैं that allows bacteria from viruses because bacteria cannot pass through the semi permeable membrane। इसका जो डायमीटर होता है, इसमें जो पोर्स होते हैं, उस पोर्स के साइज के अकॉर्डिंगली वायरस सेपरेट हो जाता है, बैक्टीरिया सेपरेट हो जाता है। अच्छा, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये आपकी डेली लाइफ में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। जो हमारे घर में फिल्टर्स लगे होते हैं ना, वाटर फिल्टर्स, सो वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज में इसका बहुत यूसेज है। अब ये क्या होता है, जिस तरह मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम्स यूज हो रहे हैं, जिसमें प्रोसेस होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का। आप देखें ये क्या है, दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब सॉल्ट रह जाते हैं, मिनरल्स रह जाते हैं, आयंस रह जाते हैं, पार्टिकल रह जाते हैं, सॉइल पार्टिकल, सैंडी पार्टिकल्स, वो सब यहाँ रह जाते हैं जब हम प्रेशर से वाटर के अंदर मूव करता है। सो इस मेम्ब्रेन से सिर्फ फ्रेश वाटर मूव कर सकता है, या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आयंस जो आपकी बॉडी के लिए यूज बहुत बेनिफिट होते हैं, बेनिफिशियल हैं, उसके अलावा ऑल आर लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, जिससे फ्रेश वाटर रह जाता है एंड सॉल्ट एंड अदर पार्टिकल्स दे बिकम सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशंस हैं जिससे हम यूज करके हम बहुत सारी अपनी लाइफ में बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है जी फिनोमिना फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन में आप देखें एक फिल्टर है और दैट अलाउज फ्यू पार्टिकल टू पास थ्रू। ये भी एक फिनोमिना है। अभी तक हमने डिफ्यूजन देखा, ऑस्मोसिस देखा, हमने इसके अलावा अब जो एक और फिनोमिना है फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस बाय विच small molecules are forced to move across semi-permeable membrane with the help of hydrostatic pressure। Hydrostatic pressure means water pressure। Hydro means water, hydrostatic means water pressure, or in case of animal cells it's a blood pressure। जब प्रेशर से ब्लड मूव आउट करता है, जो बहुत सारे पार्टिकल जो हमारे ब्लड में रहने चाहिए वो ब्लड में रहते हैं। जब हमने एक्सक्रीशन का प्रोसेस पढ़ेंगे 10th क्लास में इंशाल्लाह, तो वहां पर आपको ये फिल्ट्रेशन का फिनोमिना बहुत अच्छा समझ आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फिल्ट्रेशन की कोई हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ बेनिफिट्स हैं। यस, इफ इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल ब्लड प्रेशर फोर्सेस वाटर and dissolved molecule to move through the semi-permeable membranes of capillary wall cells। ये जब हम देखेंगे ड्यूरिंग ये किडनी की फंक्शनिंग टोटली फिल्ट्रेशन पे डिपेंड करती है कि जैसे ही वाटर किडनी में ब्लड किडनी में आता है, उसमें से जितने पार्टिकल्स अनवांटेड मटेरियल सॉलिड वेस्ट यूरिन की फॉर्म में या यूरिया के फॉर्म में किडनी से रिमूव आउट हो जाते हैं, और उनमें फिनोमिना क्या है, उनकी जो वर्किंग फिनोमिना है वो है फिल्ट्रेशन। ठीक है, अच्छा फिल्ट्रेशन का भी फिनोमिना ऐसे ही है जैसे हमने अभी देखा था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। ये देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, आप देखिए कुछ लार्जर पार्टिकल्स हैं, दे डू नॉट पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन। कौन कौन, सिर्फ कुछ पार्टिकल्स इससे मूव कर सकते हैं, इससे पास ऑन हो सकते हैं। सो इन फिल्ट्रेशन द प्रेशर कैन नॉट फोर्स द लार्जर मोलिक्यूल्स,
इनमें प्रोटीन भी हो सकते हैं, सेल के ब्लड सेल्स भी हो सकते हैं, दे डू नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल को आप देख लें। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे फिनोमिना है, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। अब क्या फिनोमिना है, हमने पहले देखा था कि सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस था कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। फिर हमने ऑस्मोसिस देखा, उसमें भी हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन था, उसमें एडिशन क्या हुई थी, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। अब ये फिनोमिना है, दिस इज अगेंस्ट द नेचर, क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन। So the movement of molecule from an area of lower concentration to the area of higher concentration। और आपको पता है lower से higher जाने के लिए there must be some expenditure of energy in the form of ATP and this is called active transport। ठीक है, अब देखें यहाँ पर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब इन सोल्यूट ने कैसे एंटर होगा, so the movement of molecules from lower concentration to higher concentration through semi-permeable membrane, but there is, because हमने lower से higher की तरफ जाना है, then there should be some involvement of energy। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसके लिए कोई ना कोई एक ऐसा पंप होना चाहिए जो अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। और ये पंप्स क्या हैं, इनको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स। अब आप देख रहे हैं यहाँ से ये सोलिड पार्टिकल्स पहले इस कैरियर प्रोटीन में होते हैं, फिर कैरियर प्रोटीन अपनी शेप को चेंज करता है और अलाउ करता है कि मटेरियल अंदर एंटर हो जाए। ठीक है, अब देखिए पहले एंटर हुआ, फिर सब शेप चेंज किया और ये अब इसके लिए फिनोमिना के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, so carrier proteins of cell membrane use energy to move molecules from the lower concentration to the higher concentration, या हम इसके लिए और वर्ड यूज करते हैं अगेंस्ट concentration gradient। ठीक है, so membranes of nerve cells have carrier proteins in the form of sodium potassium pump। जैसे हमारे ब्रेन में मैसेज जो कन्वे होता है, ब्रेन में मैसेज कैसे ब्रेन तक जाता है, वो जो नर्व इम्पल्स की मूवमेंट होती है, दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। और उसमें कौन सा फिनोमिना होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, अब हम इसकी एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अभी तक हमने डिफ्यूजन ऑफ गैसेस देखा था, ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देखा था, उसमें कौन से नेचुरल फिनोमेना है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बट आप देखें वर्ड एक्टिव मींस कि द वर्क शुड बी डन। ठीक है, कोई ना कोई काम हो रहा है, जब काम हो रहा है इट मींस कि देयर मस्ट बी सम एनर्जी इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल की मूवमेंट है। So this lower concentration movement to the higher concentration, they need energy instead of diffusion and osmosis। ठीक है, अब देखें इसके पास क्या, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटसाइड सेल, इनसाइड सेल, और इसके पास ये कैरियर प्रोटीन्स है। अब आप देखें ये मॉलिक्यूल पहले सबसे इस कैरियर प्रोटीन में फिक्स होता है, फिर इसकी शेप चेंज होती है, और ये है जी माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ से एटीपीज आते हैं और ये अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, but because this is the natural phenomena from higher to low, but during active transport there is a movement from low to high, so it requires ATP। ठीक है, so movement of molecules हो, diffusion हो, सपोज आप देखें रूट सेल्स में जब सोल्यूट से एंटर होना होता है, या किडनीज में कौन कौन से फिनोमिना हम देखेंगे कि सॉल्ट कैसे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, ये एग्जांपल्स हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। इसमें मॉलिक्यूल आप देखें हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, these mitochondria is actually the bundles of energy formation। हमने देखा था ना पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, सो ये तीनों फिनोमिना क्या है, जिससे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन कंसंट्रेशन टू अदर कंसंट्रेशन। सो डिफ्यूजन में सिंपल है, अब आप इसको देख सकते हैं जैसे आप स्लाइड करके हमने कोई चीज आनी हो तो इससे वेरी इजी, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखें जस्ट लाइक ए लेडर, हम एक सीढ़ी जैसा चढ़ते हैं ना स्टेयर्स में,
तो हमें ऊपर जाने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है आपको। सो जब हम जाते हैं तो स्वेट हो रहा होता है बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की फॉर्मेशन ज्यादा होती है। ठीक है, नाउ होप यू कैन अंडरस्टैंड वेल। अच्छा जी, आगे हम एक दो सोडियम पोटेशियम पंप को देख लेते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप क्या है? अभी जो ये पंप है सोडियम एंड पोटेशियम का, इसको हम कहते हैं, अब इसकी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नर्व इम्पल्स कैसे मूव करती है। अब नर्व इम्पल्स से यहाँ से गुजरना है। ठीक है, अब ये नर्व इम्पल्स को कैसे अलाउ करता है? अब देखिए, दिस इज आउटसाइड ऑफ द सेल, दिस इज इनसाइड ऑफ द सेल। अब ये देखिए, ये पोटेशियम है, ये सोडियम है, इनकी मूवमेंट की वजह से आप देखें ये सोडियम के फिटिंग पॉइंट है, यहाँ पर पोटेशियम फिट इन होता है। अब जैसे ही ये ओपन होगा सोडियम के लिए, और अब इसकी दो कंडीशंस हैं। एक है रेस्टिंग कंडीशन जिसमें रेस्ट है, कोई मैसेज नहीं ब्रेन को जा रहा, और एक वो है जिसमें ब्रेन को मैसेजेस कन्वे हो रहे हैं, सेंड हो रहे हैं। अब इनको हम देख लेते हैं। इन द रेस्टिंग टाइम नॉन कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स, यानी कि नर्व इम्पल्स कोई नहीं जा रही। दिस पंप स्पेंड्स एनर्जी टू मेंटेन हायर concentration of potassium and lower concentration of sodium inside the cell। ठीक है, inside the cell क्या है? higher concentration of potassium and lower concentration of sodium। ठीक है, for resting time the pump moves sodium to outside of the cell where they are already in higher concentration। यानी कि रेस्टिंग टाइम में सोडियम जितने भी सेल के अंदर होता है वो बाहर की तरफ जाता है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ताकि अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो ये रेस्टिंग टाइम में नर्व इम्पल्स की कंडक्शन स्टॉप हो जाती है। बट जैसे ही नर्व इम्पल्स कंडक्ट करता है, मैसेज ब्रेन तक जाना होता है, ये जो पंप्स है सोडियम पोटेशियम पंप, दे अलाउ पोटेशियम टू मूव आउट एंड सोडियम टू मूव इन। ठीक है, सो जिससे जब पोटेशियम बाहर जाता है सोडियम सेल के अंदर आता है, दैट अलाउज द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। याद रहेगा? अच्छा अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना बट बहुत इजी फिनोमिना है। अब आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि सेल में एंट्री कौन सी होती है। सेल मेम्ब्रेन को ये हमने देखा था थ्रू मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस था, थ्रू मेम्ब्रेन ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। बट यहाँ पर देखें कुछ ऐसे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इस सेल में कैसे एंटर होते हैं, ये ब्रेक करते हैं इस मेम्ब्रेन को। ठीक है, अब देखें ये सेल मेम्ब्रेन के पास आए पार्टिकल्स और इन्होंने अब मेम्ब्रेन बना दी। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के पार्टिकल और जब सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं देन दे बर्स्ट, और यहाँ पर सेल को, इसको हम कहते हैं ये बल्की मटेरियल, बहुत जो बड़े बड़े होते हैं ना प्रोटीन मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट्स, इनके लिए एंट्री के लिए एक फिनोमिना है, इसको हम कहते हैं एंडो मीन्स इनसाइड, साइटोसिस मीन ब्रेकडाउन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, साइटो मीन्स सेल और ये सिस मीन्स ब्रेकडाउन। सो एंडोसाइटोसिस मीन्स इसकी सेल मेम्ब्रेन की ब्रेकडाउन से जो एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। ठीक है, इनको हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब इनफोल्डिंग्स क्या से आप देखें, इनकी एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स हैं, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस इज आल्सो कॉल्ड सेलुलर ईटिंग, पिनोसाइटोसिस इज आल्सो कॉल्ड सेलुलर ड्रिंकिंग। यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स के टेक इन है फेगोसाइटोसिस, लिक्विड का इनटेक है पिनोसाइटोसिस। ठीक है, ये दोनों एंडोसाइटोसिस की टाइप्स हैं। अब देखिए सॉलिड पार्टिकल है, ये एंटर हुआ, सेल मेम्ब्रेन को टच किया, सेल मेम्ब्रेन ने इसका वेसिकल बनाया, ये वेसिकल बना के सेल के अंदर एंटर हो गया, और जब इसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक है, और अब लिक्विड में देखें, इसमें लिक्विड पार्टिकल्स हैं, they break the cell membrane and they can enter into the cell। और ये दोनों फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस मॉलिक्यूल्स की एंट्री के लिए होते हैं। सपोज जैसे सेल में हम आगे देखेंगे कि सेल में कोई अनवांटेड मटेरियल होगा, वो कैसे एंटर होता है और कैसे सेल उसको उसका लाइसिस करके उसका ब्रेक डाउन करके अलाउ करता है कि कुछ मटेरियल अलाउ होते हैं एंटर होने में, कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इज द एक्सोसाइटोसिस, यानी कि अब सेल्स के बाहर कैसे मूवमेंट होनी है बल्कि मटेरियल्स की। एक तो हमने इंपोर्ट देखा था, ये है एक्सपोर्ट। अब देखिए कैसा एक्सपोर्ट, ये पार्टिकल्स कलेक्ट होते हैं, मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करते हैं।
ठीक है, ये मेम्ब्रेन इज मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन एंड देन दे मूव आउट ऑफ द सेल। ठीक है, so this process adds new membrane which replaces the part of membrane lost during the endocytosis. So it is a process through which bulky material are exported out of the cell. ठीक है, exo का word है ना, out of the cell. So this process is called endocytosis. Hopefully अभी जितने भी phenomena है आप इसको please make sure go through the lesson thoroughly so that you can learn, you can understand the whole concept of transport better. Thank you very much, and please do subscribe my channel The Science Mania, and if you have any question please do ask me in the comment section and I will give you answer. Thank you very much for listening me. Allah Hafiz.